Let's cover all chapters of 12th standard. We will not say derivation and numericals, only concepts, so that we can understand each chapters of 12th standard. Yeah, it will take, if you take derivation and numericals, it is going to take a long time. That's why in the starting point, just understand concepts. Okay. Once you understand the concept carefully, then you will be able to understand derivation. Then you can solve numericals based on concepts. That's why I'm taking just concepts to understand. Let's start with the first chapter, which name is I think it should be electrostatics. If equations are given, so name of the first chapter, first lecture is electric charges and fields. Let me write electric charges and fields. This is our lecture. Now let's start with the first topic, or you can say first concept, which is nothing but charges. You can say. Remember, this is a main. I would say it's a main character. Charge is the main character of this chapter, of this lecture. You will listen a lot of times during this. Yeah, I have a PPT. First of all, I will read so that I can't skip any concepts. That's why I took a PPT. Let's start with a charge. What is charge? I told you this is going to be main character of this lecture, so don't forget it. Charge, this is nothing, but it is, I think, electrons, protons, and nucleus. Let's start from basics. As you know, everybody has a property. Same atoms have a property, or you can say atom has a property, and that property is nothing but charge. That property is nothing but charge. So charge is the property of atom. Charge is the property of the atom. Let's talk about in Hindi. चार्ज का इसमें मेन रोल है इस लेक्चर में. कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. सोचो जैसे हर इंसान का एक नेचर होता है, वैसे ही हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम लोग चार्जेस कहते हैं. तो हर मैटर यानी पार्टिकल्स को ना लेकर, बल्कि हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसके जो आटम्स होते हैं, उस आटम्स की जो प्रॉपर्टी है वो चार्जेस. आप समझेंगे कि चार्जेस कितने प्रकार के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट इट. सो प्रॉपर्टी होती है, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं, क्योंकि चार्जेस जो रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक चार्जेस. So I hope you understood that this what charge is the property of the electric. That's why this is known as electric charge. Okay, इसकी वजह से ही चीज़ें आपस में अट्रैक्ट और रिपल होती है. जैसे अगर पॉजिटिव ले तो रिपल होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव ले तो अट्रैक्ट होगा. तो कहने मतलब है कि जो अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जो रिपल्शन देखने को मिलता है, वो चार्जेस के कारण ही होता है. ओके, इसी के कारण होता है. सो फर्स्ट वी हैव पॉजिटिव चार्ज. कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं? तो दो प्रकार के. फर्स्ट वी हैव पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव मीन्स जो साइन है वो एडिशन का रहता है, नेगेटिव मीन्स जो साइन है माइनस का रहता है. सो टोटल चार्जेस है दो चार्जेस, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. ओके, सो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को एडिशन साइन के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज प्रोटॉन्स. ओके, एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन. ऑलवेज रिमेंबर, whenever you are observing electrons, it means you have a negative charges. It means
you have negative charges. So electrons means negative charges, protons means positive charges. From P you can remember for the long term. P is a static. Protons first letter, or you can say yes, first letter of the protons is P. P means positive. So proton has a positive charge and electron has a negative charge. That is how you will remember for the long term. Okay. So rule of thumb: same charge. We know if charges are same, then of course in a nature we can see naturally we will observe that yeah, both are repelling to each other. Does this happen? Answer is yes. Naturally it happens. So if charges are same, positive positive, they will repel to each other. If unlike charges, then of course they will attract to each other. It happens. You can say this is a nature. This is a nature. Positive will repel and negative will repel. But positive negative both are unlike, so that's why they will attract rather than repelling to each other. Okay. So एक दूसरे को okay, we have understood this. Now next topic. First of all, we completed charge. We completed charge. We saw definition of a charge. We saw types of a charge, which are negative positive charges. So negative charge is known as electrons and positive charge is known as protons. That was enough for this topic. Now next topic we have charges की तीन खास बातें, or you can say properties of three properties of charges. Three properties of charges. So next topic is three properties of charges. First we have, इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर में इन्हीं का ही रोल रहता है. जैसा कि मैंने कहा कि इसका ये एक मेन कैरेक्टर होने वाला है फॉर दिस लेक्चर, दैट्स व्हाई. सो अब लेट्स सी what are those three properties of a charges. So first we have additive. When it comes to sum of charges, then we say it's a normal. We are not going to apply algebra. ओके. सो अगर हम लोग चार्जेस को ऐड कर रहे हैं तो सिंपल, जिस तरह का रियल लाइफ में हम लोग एडिशन करते हैं नंबर्स का, तो उसी प्रकार कॉलम्स यू कैन से चार्जेस का हम लोग सिंपल ऐड करें. फॉर एग्जांपल वी हैव फाइव पॉजिटिव और यू कैन से 5 protons and minus 3 electrons. So finally we will get plus 2 protons. That is how we will sum. Okay, we will add. So this was the first property of the charge. So first is what? Additive. Main thing was that whatever charges will come to you, just add. If 5 protons and minus 2 electrons, then just add. You will get minus 3 protons. That is how you will add. This was the main thing. ओके. चार्जेस को नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम आवर रियल लाइफ. नाउ नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स एक आई वुड से फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो चार्ज ना बनता है ना खत्म होता है. मीन्स चार्जेस कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड. ओके, डिस्ट्रॉयड. सिमिलर जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी को लेकर, तो इट इज़ एक सेंटेंस जो कि बहुत फेमस है एनर्जी को लेकर. कहा जाता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड. सेम इट हैपेंस विथ चार्जेस. चार्जेस कांट बी क्रिएटेड एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, है ना. तो इसे ना बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है. तो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? चार्ज, ना कि एनर्जी. अगर वो जो चार्जेस है अगर वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, उस फिनोमेना को हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं. यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज दिस इज फिनोमेना. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज कंजर्वेशन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज. Now next, which is the last property of the charge, is quantization. Quantization. Let me write. Quantization. First we have additive, conservation, and quantization. These are three properties. So let's talk about quantization. It says
What is the meaning of additive? Additive means addition. Let me bring first. Additive means it was rotating automatically. So we were discussing about क्वांटिजेशन. सो चार्ज हमेशा पैकेट्स में होते हैं यार, इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास 4.5 प्रोटॉन्स है. नो, दिस इज रॉन्ग टू से दैट यस वी हैव 4.5 चार्जेस. इट इज आई वुड से दिस इज invalid for the charges, yeah, or you can say this is wrong to consider any charges like this. So that's why don't say any charges in decimal. Just direct you can say 4 charges, 5 charges, 6 electrons, 10 electrons, 20 electrons. So direct, don't say 20.1, don't say 99.6. No, this is an incorrect way. Okay, incorrect way. So charges, रिमेंबर चार्जेस हमेशा पैकेट्स में होते हैं. उसके ना अधूरा किया जा सकता है, जैसे कि 1 चार्जेस तो उसको अधूरा नहीं किया जा सकता. 1.5, 1.6 लाइक दैट हम डेसिमल में चार्जेस को नहीं उसको डिवाइड कर सकते, है ना. तो इसलिए कंप्लीट बोलना ही उचित रहेगा. या 1 कह सकते हैं या 99 डायरेक्ट. इस तरह आप 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 1.5, this is incorrect. Okay, now third concept, which name is Coulomb's. It tells us the power of a hisab, or you can say the power of a accountant. Yani Coulomb's law. This is a law of Coulomb. Okay, Coulomb, and we know SI unit of a charges is, I think, coulombs. So what is the law of coulombs? Remember, it will tell us जो फोर्सेस है उसका हिसाब होता है. फोर्सेस का इसका मतलब कि जो कुलाम्स है, जो चार्जेस है, वो अट्रैक्ट करें या रिपल करें, तो वो कितने फोर्सेस से रिपल कर रहे हैं या फिर कितने फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम कॉलम्स लॉ. अब सवाल ये है कि अगर 2 चार्जेस एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, यानी पुश मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो कितनी जोर से यानी कितनी फोर्सेस से वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं. अगर इन सिंपल स्टैंडर्ड वर्ड्स में और यू कैन से सेंटेंस में बोले, तो ये जो फोर्सेस है कितना अमाउंट है, वो अमाउंट ऑफ फोर्सेस कितना है जो कि चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं. ओके, जस्ट अपोजिट ऑफ इट विल बी व्हाट, कितने चार्जेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. दिस इज व्हाट. सो हम लोग यहाँ पर अमाउंट ऑफ फोर्सेस को जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द कॉलम्स लॉ. ओके, इसका जवाब ठीक. अगर चार्जेस बड़े हैं तो फोर्स ज़्यादा होगा. देखो, इफ साइज ऑफ द चार्जेस आर if size of the charges is big, then force will be big. If size is small, then force will be small. It happens with also, remember, but radius is a constant. Okay, then it is similar like gravitation chapter. In gravitation chapter we say, yeah, if mass of the object is greater, then they will attract to each other with, I think, more forces. And we know also that gravitation is always attraction force, not repulsion force. When it comes to electrostatic chapters, we say yes, we have attraction and repulsion. This is what is the usual difference between them. Okay, okay. अगर उनके बीच की दूरी या डिस्टेंस या रेडियस कह सकते हो, डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम हो जाएगा. या same point, I would say same point we studied in gravitation chapter. कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को, जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स को, अगर उसको बिग कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या होता है कि वो फोर्सेस जो बिटवीन देम है वो डिक्रीज कर जाता है. सेम इट हैपेंस विद द चार्जेस. इफ
distance between two charges are being increased, in that case force will decrease automatically. Okay, now next topic we have electric field. From word we can understand it completely without having to. Here you can see we have a field word which is added with the electric. Here electric is added, and it means we are in the context of electric. Okay, now it is saying, this is saying, let's let me read this ppt. ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है. सोचो एक या ये एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलाका है, एज वी नो कि यहाँ फील्ड इज नथिंग बट दिस इज एरिया. सो एक एरिया में वह इलाका है एक चार्ज के आसपास जहाँ कोई दूसरा चार्ज आने पर फोर्स महसूस करे. एक एरिया लिया जाए जो कि इलेक्ट्रिक एरिया है, अगर उस एरिया में चार्जेस को रख दिया जाए तो वो चार्जेस फोर्स महसूस करेगा. किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक आई वुड से मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के द्वारा वो फोर्सेस को महसूस करेगा. अगर उस चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से अब बाहर है, आउटसाइड है, तो वो फोर्सेस को महसूस नहीं कर पाएगा. दिस हैपेंस. So electric field is nothing but this is a field of electric where charges comes inside it and they feel what forces. If they are outside of from the electric field, they can't feel forces. Okay, that is what is the meaning of electric field. Now अगर आप उस इलाके के बाहर हो तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी अगर इन द लैंग्वेज ऑफ चार्जेस देखें तो अगर चार्जेस बाहर हैं तो उन पर कोई भी फोर्सेस नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ फिफ्थ कॉन्सेप्ट, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. Here line word is added. We have understood what is the electric field, but here just we added a line, and it didn't change completely. It is saying हम जो लाइन्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइन्स देखते हैं, दैट इज व्हाट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. यानी लाइन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होना चाहिए. दैट्स इट. देन वी कैन कॉल देम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. दिखने वाली लकीरें. अगर एक्चुअल में देखें तो रियल लाइफ में हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब जब व्हेन वी एंटर्स इनटू 12th स्टैंडर्ड, देन वी ऑब्जर्व कि ये जो चैप्टर्स है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोज थिंग्स हैपन इन रियल लाइफ. सेम ओवर ईयर यहाँ पर लाइन्स की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लाइन्स देख नहीं पाते, जो कि अगर रियल लाइफ में देखिए यार इट्स completely impossible to observe lines in electric fields. Okay, so क्योंकि हम फील्ड को देख नहीं सकते इसलिए हम इमेजरी लाइन्स बनाते हैं. इमेजरी लाइन्स जस्ट वी आर इमेजिंग किया these are lines in electric field. Okay, this was enough. So ये lines कभी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते. intersect मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप नहीं कर सकते. इंटरसेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा जब व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. दैट वाज इनफ. सो नेगेटिव चार्ज के अंदर ये लाइन्स. अच्छा हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो लाइन्स बाहर की ओर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन अगर नेगेटिव चार्जेस तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की ओर जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी उस फील्ड में आएगा नेगेटिव चार्जेस. अगर वही पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जाएगा. ओके, दिस वाज सम पॉइंट्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इलेक्ट्रिक डायपोल. Electric dipole, it's nothing but this is a pair. Now let's see what kind of a pair. जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, जब हम एक अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो दोनों बराबर ताकत के एक छोटी सी दूरी पर रखे हो, यानी वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस एक छोटी सी डिस्टेंस है. उस डिस्टेंस पर अगर
वो बराबर मासेस, जो मासेस ऑफ द चार्जेस सब बराबर रहे और उस सब के एक छोटी सा डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो क्या होगा, तो उस पेयर को हम डायपोल कहते हैं। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। देखो यहाँ पर मेन थिंग इज दैट कि जो मासेस ऑफ द चार्जेस है वो शुड बी क्या, सेम सेम। इफ टू 2 ग्राम देन 2 ग्राम वन मोर चार्ज शुड बी वी शुड हैव। सो जो मासेस ऑफ द टू चार्जेस है वो होना चाहिए सेम, और जो डिस्टेंस है वो छोटे से डिस्टेंस होना चाहिए। इन दैट केस वी ऑब्जर्व कि वो जो पेयर है वो नथिंग बट डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल, उस पेयर को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जहाँ पर अच्छा, डायपोल का मतलब क्या होता है, डायपोल मतलब जो पोल है वो डबल है। अब डबल का मतलब है कि एक साउथ पोल हो सकता है, एक नॉर्थ पोल हो सकता है, एक साउथ पोल हो सकता है, एक नॉर्थ पोल हो सकता है। तो लेकिन ये मैग्नेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चार्जेस है वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन सेम मासेस पे होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव सेम मासेस और वो छोटे से डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे पेयर को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ओके, दैट्स इट अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट we have electric flux. Electric flux, look, it is related to electrical lines. It will tell you work of this electric flux is to provide a amount of lines that are leaving from the electric flux and entering into electric flux. That is what we will get from electric flux. Flux means amount of lines. Flux means amount of a flux. And here electric word is added. From this we understand, yes, we are in the context of electric. Okay, so you will see this word flux many times, not in this context but in another context. For example, I think volume, uh, integration of volume, but I am not talking about that concept right now. Just over here understand कि flux means होता है कि जो lines होते हैं magnetic fields में, उसके अमाउंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो मानो एक खिड़की है और बाहर बारिश हो रही है, कहते हैं कि बाहर बारिश होता है और एक खिड़की है। अब जो वो बूंदे बारिश है वो घर के अंदर कितना प्रवेश करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो खिड़की की साइज है वो कितना बड़ा। और बात रहा कि जो ये डिपेंड करेगा खिड़की के साइज और डायरेक्शन किस डायरेक्शन है, और बारिश का डायरेक्शन इस बात पर निर्भर करता है, यानी साइज पर और क्या बोलते हैं डायरेक्शन, इस पर। ठीक है, इसी प्रकार क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ होता है। वैसे एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजर रही है और उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। जस्ट यहाँ पर अमाउंट ऑफ लाइन्स इज कंपल्सरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इज नथिंग बट ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा शॉर्टकट। ये कहता है कि अगर कोई बंद डब्बा, यू कैन सी क्लोज्ड सरफेस, जिसमें वॉल्यूम है, जब व्हेन इट कम्स टू बंद डब्बा मीन्स दैट डब्बा हैज अ वॉल्यूम, ओके, एंड सरफेसेस आर क्लोज्ड। सो क्लोज्ड सरफेस, तो उसमें से निकलने वाले टोटल फ्लक्स, just you can say it is a connection of this electric flux is with gaseous law. Gaseous law is saying कि जो एक क्लोज्ड सरफेस है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रहा है और एंटर कर रहा है, दैट इज व्हाट इज आवर गॉसेस लॉ। तो उसमें से निकलने वाले टोटल फ्लक्स सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस डब्बे के अंदर कितना चार्ज बंद है। यानी अगर वो चार्जेस बाहर निकल रहा है इसका मतलब वो डब्बे में चार्जेस मौजूद था, प्रेजेंट था, दैट्स व्हाई। अगर वो कुछ चार्जेस बाहर है, कुछ चार्जेस बाहर है, तो ये हमें पता करना है कि कितने चार्जेस उस डब्बे में प्रेजेंट हो सकते हैं ना। और जो चार्जेस बाहर निकले तो इसका मतलब कंफर्म होता है कि जो चार्जेस थे वो ऑलरेडी पहले क्लोज्ड सरफेस में थे। तो जो क्लोज्ड सरफेस में उतने सारे चार्जेस थे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, और व्हेन इट कम्स टू कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
can come inside a closed surface. So we will get when we will put all charges inside closed surface, then we will understand yet that this much charges lines can be put inside a closed surface. Okay. सो फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस डब्बे के अंदर कितना चार्जेस बंद है, बाहर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, बस सारा ओवरऑल है। क्योंकि हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है ना कि ओपन सरफेस है। जब क्लोज्ड सरफेस की बात होती है इसका मतलब वो क्लोज्ड सरफेस के पास वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम में हम लोग जानते हैं कि उसी में ही कुछ रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट चार्जेस है, तो कितने चार्जेस उस डब्बे में रखा जा सकता है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गैसेस लिए। एंड गैसेस लोग का ये यही स्टेटमेंट था कि कितने चार्जेस एक क्लोज्ड सरफेस में रखा जा सकता है। अगर वो चार्जेस बाहर आया तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पहले थे क्लोज्ड सरफेस में, तो ऑलरेडी थे तो कितने थे, और जब कितने थे तो हमें पता चलेगा कि कितने बाहर उस क्लोज्ड सरफेस से निकले। ओके। लेकिन लेकिन उस डब्बे जो क्लोज्ड सरफेस उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है कि बाहर कितने चार्जेस है कितने नहीं। So summary, finally it has completed. It has completed. Now let's see summary table. Summary table. We saw कि जो charge है, it is nothing but matter की property जो force produce करता है। कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा? ये चार्ज फोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो दोनों को रिपल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर फोर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो कि इनविजुअल है, ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये जो फोर्स हमें देखने को मिल रहा है वो चार्जेस के कारण मिल रहा है। ओके, चार्जेस के कारण जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है वो चार्जेस के ही कारण होता है। अच्छा, तो ये एक प्रॉपर्टी था, मैटर की प्रॉपर्टी है। हम लोग सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका प्रॉपर्टी जिससे हमें फोर्स पता चलता है। अच्छा, कॉलम्स लो। columns you know कि this provides amount of I think forces। ये दो चार्जेस के बीच के फोर्स का फॉर्मूला, एंड जब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं हम नंबरिकल्स में, तो हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि हमें पता चल सके कि वो जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है तो वो कितना है। दैट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस कॉलम्स लॉ। रिमेंबर दिस Coulomb's law, it provided a statement, and then statement was converted into mathematics. That is how we got equation or you can answer formula. Now nowadays people are applying those equation, not those but this equation Coulomb's law. Okay. Now let's see electric field. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वर्ड से ही हम लोग को क्लैरिटी मिल रहा है कि ये जो एक फील्ड है हमारे पास, लेकिन कैसा फील्ड? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसमें चार्जेस हो सकते हैं या फिर चार्जेस उसमें जा सकते हैं, या प्रोटॉन्स जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अच्छा, जब बात आती है पॉजिटिव चार्जेस को, तो हम लोग देखते हैं कि वो पॉजिटिव चार्जेस वो बाहर की ओर जाता है, जो कि नेगेटिव चार्जेस उस फील्ड में जाते हैं, है ना, फील्ड। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वी कैन से दे कांट रिमेन, यू कैन से दे कांट लिव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का काम है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की हो जाए, और नेगेटिव चार्ज का काम है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। हाँ, तो नेक्स्ट भी है पर डायपोल। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या जब बात आती है डायपोल की, हम लोग कुछ बातें को माइंड में ये रख के चलते हैं। वो क्या क्या बात है? ये है कि जो चार्जेस है वो शुड बी अनलाइक, ओके, डिफरेंट होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव व्हेन इट कम्स टू डायपोल। डायपोल मतलब क्या है कि हम लोग दो चार्जेस को ले रहे हैं, लेकिन दो चार्जर डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन वन मोर थिंग विच इज सेम मास होना चाहिए, सेम मास, एंड डिस्टेंस है वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए बल्कि छोटा सा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक सेट में। अच्छा, दिस इज कंप्लीट, दिस इज डन। नेक्स्ट वी हैव अ फ्लक्स। जो फ्लक्स है इसका अदर वर्ड क्या हो सकता है? इसका अदर वर्ड हो सकता है, यू कैन से मीनिंग ऑफ अ फ्लक्स विल बी amount of lines, amount of electric lines, amount of electric field lines,
That's it. That's it. Next we have gases law. Remember, it is a law of gas. अरे ये जो gas है ये you can say this is the name of a person and same here we some column. But ये column है वो I think it's a SI unit of a charge. So let's see what is the gases law. It tells you total flux from a closed surface or you can say yeah टोटल फ्लक्स निकलने का आसान तरीका सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए, या अगर आप लेते हैं ओपन सरफेस तो इट इज़ अ वेरी आई कैन से इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट व्हाट चार्जेस, जो कि ओपन सरफेस में कहाँ से रह सकता है लेकिन उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वायलेट है। वायलेट क्या है कि हमारे पास क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। जब हमारे पास क्लोज्ड सरफेस होता है तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम है उसमें चार्जेस रह सकते हैं, और जितना चार्जेस उसमें है उस क्लोज्ड सरफेस में, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम गैसेस। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड चैप्टर, सेकेंड लेक्चर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, जो ये नेम ऑफ दिस लेक्चर वाज इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़े और फील्ड्स के बारे में पढ़े। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये चार्जेस था, ये फील्ड था। जो फील्ड था ये फ्लक्स था, सो रिलेटेड था फील्ड से, एंड दिस डायपोल वाज रिलेटेड फ्रॉम चार्जेस, एंड गैसेस लॉ इट वाज रिलेटेड फ्रॉम फ्लक्स, एंड फ्लक्स वाज रिलेटेड फ्रॉम फील्ड। That is how they are connected to each other. So finally, now we are going to talk about electrostatic. Remember, आप डायरेक्ट from chapters, from name of a chapters you can understand कि हम लोग एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें नेम ऑफ दिस चैप्टर वाज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसका मतलब है कि हम लोग चार्जेस को पढ़ने जा रहे हैं और फील्ड्स को पढ़ने जा रहे हैं। इस पर ज़्यादा हाईलाइट होगा इस चैप्टर में। अब जो सेकेंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टैटिक है, वो रेस्ट में। तब वो क्या क्या बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए जब चार्जेस यू कैन से जब स्टेट में हो, यानी वो रेस्ट में हो, ना कि वो फ्लो कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट electrons are at rest. अच्छा, one by one let's discuss each topics. So first topic we have which is electric charge, which is electric charge. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो रुकी है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जो समय के साथ चलना है, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब वो जो चार्जेस है वो रेस्ट में। इसमें हम चार्जेस के बारे में तब पढ़ते हैं जब वो चल नहीं रहे होते हैं। इसी का मतलब होता है स्टैटिक, यानी चार्जेस आर नॉट मूविंग एट ऑल। सो फर्स्ट टॉपिक आई हैव रिटन ओवर हियर व्हिच इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में। चार्जेस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी of the material, you can say it is a property of the matter. yeah सोचो चार्ज की खासियत है, सोचो एक चार्ज की खासियत है जिससे मास की वजह से ग्रेविटी होती है। अगर उसमें मास है तो वो ग्रेविटी उसको पुल करेगा। वैसे ही चार्ज की वजह से एटम्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक स्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि चार्जेस है यहाँ पर, ना कि जो मासेस है। तो चार्जेस है वो रिपल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी सी ओके इन दिस चैप्टर।
अच्छा, दो टाइप्स के चार्जेस के दो टाइप देखे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, रूल क्या है, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, लेकिन अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को पुल करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, properties of charges, properties of charge. Yeah, again we have studied this properties of charges in the previous chapter, but as a recap, as a summary, let's again understand it. First we have quantization, additive and conservation. These are the three properties of a single charge. सो इसका मतलब है कि जो हम लोग सम करेंगे और चार्जेस का, वो बहुत ही सिंपल होगा, जो हम रियल लाइफ में एडिशन का प्रयोग करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन। मतलब कि एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, चार्जेस। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट है चार्ज, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये चार्जेस जो है वो हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं जब, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो चार्जेस है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। अच्छा, जब हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ देखने मिलता है कि एक बॉडी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी बॉडी है वो सेम है, बॉडी है सेम, लेकिन अनदर बॉडी में भी वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। जो एक बॉडी है वो पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो जो दूसरा बॉडी है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा होता है। देखते हैं ऑब्जर्वेशन। खैर, यहाँ पर हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। यानी कंजर्वेशन का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर मतलब है कि जो चार्जेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व। हम लोग को ये देखने को मिलता है, यानी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज व्हाट इज अ कंजर्वेशन। अच्छा, क्वांटिजेशन मतलब क्वांटिजेशन यानी यू कैन से क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटी है वो फिक्स लेना है, ना कि डेसिमल में लेना है। यू कांट टेक 2.5, 2.6, 9.8, 9.2, 9.1 लाइक दिस, डोंट टेक। ये इसके लिए वैलिड नहीं है ना, इसके लिए वैलिड नहीं है। मासेस के लिए वैलिड है, लेकिन चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। इस प्रकार की क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास जो क्वांटिजेशन है वो कुछ इस तरह का है, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है, ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है। अगर 3.4 यानी कोई भी ऑप्शन डेसिमल में दिया है तो आप उसे डायरेक्ट कह सकते हैं ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इट इज इनवैलिड फॉर द चार्जेस। अच्छा, ये अबाउट था, ये था प्रॉपर्टीज को लेकर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्जेस। नेक्स्ट वी हैव कूलम्ब्स लॉ। Next we have Coulomb's law. I think we have studied it all, yeah. So चूँकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं, अब शुरू करते हैं चैप्टर 2 विच नेम इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी चार्जेस आर नॉट फ्लोइंग, चार्जेस आर नॉट फ्लोइंग। इस चैप्टर का जो लॉजिक है वो हमें वाई से मिलता है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि चार्जेस क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस के पास जो एनर्जी है वो कितनी है ना, जो चार्जेस के पास है वो एनर्जी कितनी है। यानी जो कॉन्सेप्ट है वर्क, एनर्जी, पावर का, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। जो चार्जेस के पास है वो एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लेट्स सी रीजनिंग। जैसे एक ऊंचाई पर रखा हुआ मैटर, पदार्थ, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने ये जाना वर्क, एनर्जी, पावर के चैप्टर में कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो एक ऊंचाई पर रखा हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। अब उससे रिलीज किया जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया है वर्क, एनर्जी, पावर के चैप्टर में।
सेम यहाँ भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। पोटेंशियल एनर्जी रखता है वैसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास जाने या दूर भागने की पोटेंशियल रखता है, पोटेंशियल रखता है। अगर वो चार्जेस एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, वो उतने डिस्टेंस में, वो कितने डिस्टेंस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। वो लिमिटेड जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, वी कैन से वो हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन जब वो लिमिटेड को हटा दिया जाए तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है, यानी चार्जेस मूव करते हैं, यानी चार्जेस मूव करते हैं। कब मूव करते हैं, जब वो डिस्टेंस बहुत ही नज़दीक हो जाए। तो कॉन्सेप्ट है कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो मेहनत लगता है, हम लोग दो चार्जेस को लेते हैं और वो दोनों चार्जेस को उसके बीच के डिस्टेंस को कम करते हैं। जो उस डिस्टेंस को कम कर रहे हैं यानी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल है। यानी हम लोग कितना पोटेंशियल प्राप्त किए बाय वर्किंग। याद रखने का तरीका है, इसे इलेक्ट्रिक प्रेशर से समझो। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो चार्जेस वहाँ से कम प्रेशर की तरफ भागेगा। डायरेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन कीप इट इन योर माइंड, ये कहकर कि अगर जितना भी हम लोग वर्क करते हैं दो चार्जेस को जो बिटवीन डिस्टेंस है उसको कम करने की, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस अगर कम करें तो हम लोग वर्क करेंगे। तो वो कितना वर्क किए, दैट इज व्हाट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो फर्स्ट वी सॉ electrostatic potential. Now next we have potential difference. यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है जो कि डिफरेंस है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग उस कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर सकते हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, प्रेशर ऑफ वाटर इन अ मटेरियल। सो जो प्रेशर ऑफ वाटर होता है वो डिपेंड करता है हाइट पर, है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल गेम ये है कि हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी होगा, तभी हमें वो जो वर्क डन है नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, है ना। अगर वो डिफरेंस इक्वल है तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट पर एट दैट हाइट जो पोटेंशियल है विल बी सेम। अगर डिफरेंस देखें तो क्या होगा, वो लेट मी रीड दिस पीपीटी। अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल बराबर है, पोटेंशियल बराबर है तो चार्ज नहीं चलेगा। अगर चार्ज चलना है तो उसके लिए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होना जरूरी है। अगर वो पोटेंशियल विल बी सेम देन दे विल नॉट मूव एट ऑल, है ना। तो अगर जो पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाए तो वो मूव नहीं करेंगे, अगर वही पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाए तो वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। ऐसा ही क्या होता है, वाटर के साथ होता है। अगर जो लेवल ऑफ द वाटर इज अ सेम देन वैसे कि यार जो वाटर है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि लेवल ऑफ द वाटर इन द मटेरियल इज द सेम। अगर उसी को हम डिफरेंस कर देते हैं तो देखते हैं कि जो वाटर है फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल इज गोइंग, दिस इज व्हाट वी हैपेंस। सो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस। सेम ओवर हियर, अगर डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो बॉडी यू कैन से चार्जेस विल मूव। अगर डिफरेंस नहीं है इसका मतलब वो पोटेंशियल इक्वल है, यानी वो सेम हाइट पर है, सेम हाइट पर। तो सेम हाइट पर है तो इसका मतलब वो चार्जेस हैं वो मूव नहीं करेंगे, दैट्स इट, मूव नहीं करेंगे। इसलिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है जो ये डिफरेंस प्रोड्यूस करे। रीज़न देखते हैं, जैसे पहले ज़मीन पर बॉल नहीं लुढ़कती वैसे ही बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं बह सकता। पोटेंशियल डिफरेंस इज कंपलसरी फॉर द करंट। सो अगर वो डिफरेंस इक्वल है तो हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगा ताकि वो डिफरेंस को कवर कर सके। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पर सरफेस वर्ड इज एडेड, इक्विपोटेंशियल।
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ पर फोकस देने की बात यह है कि जो पोटेंशियल है वो सरफेस पर है, यानी हाइट शुड बी सेम। इक्वल मतलब इक्यू मतलब इक्वल, यानी जो इक्वल है वो क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए सरफेसेस। अगर वो सेम है तो इसका मतलब चार्जेस नहीं मूव करेगा। ये एक ऐसा रास्ता है या सरफेस है जहाँ पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि इक्वी वर्ड इज एडेड विद द पोटेंशियल, सो इट इज सेम एट अ सरफेस पोटेंशियल at each point is the same, potential same है, okay, at each point. So यहाँ पर क्या है कि एक ही सरफेस पर जहाँ हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन से कि पोटेंशियल सेम। एग्जाम्पल देखते हैं, एक फ्लोर पर बॉल को घुमाने में कोई मेहनत नहीं लगता, लेकिन उसी बॉल को अगर हमें हाइट प्रोवाइड कर दे तो हमें मेहनत लगेगा ताकि उसे एक हाइट प्रोवाइड किया जाए। उसी प्रकार अगर एक सरफेस है उस पर हाइट सेम है, इसका मतलब वो एक दूसरे जो चार्जेस है उस दोनों के बीच में कोई उतना वर्क नहीं लगेगा। अगर वर्क लगाना है तो इसका मतलब वो डिफरेंस दिखाना होगा, सो दैट दे कैन वर्क, ओके, दे कैन वर्क, वो चार्जेस कैन वर्क। सो एक वैसे ही चेंज नहीं हो रही, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चेंज को घूमने में जो जीरो वर्क लगता है, चार्जेस को घूमने में जो जीरो वर्क लगता है, यानी सरफेस अगर सेम है एट सेम हाइट तो वो जो वर्क ऑफ चार्जेस है वो कुछ नहीं होगा बल्कि जीरो होगा, है ना, यानी घूमने में उन लोगों का वर्क है वो जीरो लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट वी सी कैपेसिटेंस। इसका मतलब होता है चार्ज का गुल्लक। ये चैप्टर का सबसे मजेदार पार्ट है, यू कैन से इंटरेस्टिंग पार्ट। सो कैपेसिटर, यू कैन सी कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में बहुत डिफरेंस है। कैपेसिटर ये एक डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, टू मेजर एनर्जी आई थिंक। सो दिस इज अ डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर के डिवाइस में ही एनर्जी को स्टोर करता है, सो दैट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सो कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक बैकेट में, यू कैन से बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, यानी एक बाल्टी है उसके पास वॉल्यूम। अब ये भी मैटर करता है कि जो वॉल्यूम है बाल्टी में वो कितना पानी को कवर कर सकता है, कितना रख सकता है। इसी प्रकार एक कैपेसिटर डिवाइस है, तो कैपेसिटर वो जो डिवाइस है उस डिवाइस में वो चार्जेस, कितने चार्जेस को रख सकता है, यानी कैपेसिटी ऑफ कवरिंग चार्जेस विल डिपेंड ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटी है, वैसे एक कंडक्टर कितना चार्जेस जमा कर सकता है। ऐसे कंडक्टर क्या है, ये एक मटेरियल है, कंडक्टर। इंसुलेटर वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से चार्जेस कांट मूव इन इंसुलेटर मटेरियल। लेकिन वहीं हम लोग कंडक्टर मटेरियल ले जैसे कि आयरन, तो देखते हैं ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि उस कंडक्टर में वो इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव, यानी चार्जेस विल मूव। अगर उस कंडक्टर में चार्जेस विल मूव, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी वी विल गेट फ्रॉम दैट कंडक्टर। अच्छा, वही पॉइंट यहाँ पर है कि एक कंडक्टर में कितना चार्जेस को रख सकता है, कितना चार्जेस को जमा कर सकता है, वही उसकी कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कोई भी आप कंडक्टर ले, आप ये देखेंगे कि यार वो जो कंडक्टर है वो अपने पास कितने चार्जेस को रख सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस। अच्छा, फ्रॉम कैपेसिटेंस वी कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म वी कैन से कि कैपेसिटेंस इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ you can say capacity of depositing, I think no. So capacity of covering charges inside conductor is known as a capacitance. Okay, reason for long term memory, हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं इन आवर रियल लाइफ,
इसलिए यूज करते हैं ताकि एनर्जी स्टोर कर सके, और जब इलेक्ट्रिसिटी चल जाए तो हम लोग उससे यूज करें, ताकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, नॉट अननेसेसरी। कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें कभी कभी एक साथ बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। हम देखते हैं कि यार जो इलेक्ट्रिसिटी, जो वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज लो, देन वी कैन स्टोर that much energy in our capacitor device, so that in our work we can use that much energy which is a present inside capacitor. Okay, so हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें कभी कभी एक साथ बहुत एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, चाहिए होती है। जैसे कैमरे की फ्लैश लाइट या फैन को शुरू करने के लिए बैटरी धीरे धीरे एनर्जी वहाँ से कैपेसिटर से आता है, लेकिन कैपेसिटर एकदम से सारी एनर्जी नहीं देता, वो एक बैलेंस करके एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एनर्जी को प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कैपेसिटर। यानी देखा जाए ये जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो चार्ज से आता है ना, चार्ज से आता है, और वही कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स जस्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कंडक्टर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कंडक्टर। जस्ट अपोजिट ऑफ दिस विल बी इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी अपोजिट ऑफ अ कैपेसिटेंस वी हैव अ डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई मतलब डबल इलेक्ट्रिक्स। अच्छा, लेट्स सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्ड। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बिजली के अपने अंदर से घूमने नहीं देते, या इट इज अ फैक्ट इन आवर रियल लाइफ कि अगर क्लॉथ लें या रबर लें या प्लास्टिक लें, तो उस प्लास्टिक में देख सकते हैं, या लकड़ी, उस लकड़ी में देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वो चार्जेस को घूमने नहीं दे रहा, वो चार्जेस अपना स्टेट अवस्था में आ गया, यू कैन से रेस्ट अवस्था में आ गया। ये इट हैपेंस इन इंसुलेटर मटेरियल, है ना, इन इंसुलेटर। लेकिन उसी जगह पर आप उस इंसुलेटर मटेरियल को कंडक्टर मटेरियल से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा कि वो चार्जेस को मूव करने देगा। इसी यही कारण है कि हमें एक करंट मिलता है फ्रॉम दैट कंडक्टर। लेकिन जब आप इंसुलेटर मटेरियल लेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंसुलेटर मटेरियल इज नॉट प्रोवाइडिंग व्हाट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि चार्जेस है वो रेस्ट में। चार्जेस क्या है? रेस्ट में। अच्छा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करता है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, रीज़न देखते हैं। जब हम कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक जैसे प्लास्टिक या कागज रखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? तो कैपेसिटर की चार्ज जोड़ने की शक्ति, कैपेसिटेंस बढ़ जाते हैं। जब हम कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक्स रखते हैं तो कैपेसिटर की चार्ज है उससे कनेक्ट करने के लिए वो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है जब आप डाई इलेक्ट्रिक्स को रखते हैं। अच्छा, अब इसके टेबल्स, एक समरी, टेबल समरी देख लेते हैं इसको। सो टेबल समरी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल इट एक्सप्लेन्स कि जो हमें प्रेशर मिलेगा, जो हाइट है, इट डिपेंड्स ऑन हाइट। अगर हाइट सेम है तो हम देख सकते हैं कि चार्जेस नहीं मूव करेगा। अगर हाइट में डिफरेंस है इसका मतलब चार्जेस विल रन, ओके, विल रन। इसके बिना चार्ज मूव नहीं करेगा। अच्छा, अगर चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। अगर चार्ज नहीं मूव कर रहा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट मूव, है ना। और ये देखने को मिलता है कि इंसुलेटर मटेरियल देखते हैं कि चार्जेस है वो अपने रेस्ट स्टेट में आ जाते हैं, इसलिए हमें देखने को क्या मिलता है कि वो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। वहीं अगर कंडक्टर लेते हैं तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है कंडक्टर से आ रहा है, लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ पर इनसाइड कंडक्टर वो जो चार्जेस है वो मूव कर रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन ऑफ कमिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इक्विपोटेंशियल। नेक्स्ट वी हैव इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल यहाँ हम लोग देख सकते हैं इक्वी मतलब इक्वल है, पोटेंशियल मतलब हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। अब इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट अ डिफरेंस बट सरफेस, यहाँ पर सरफेस वर्ड इज एडेड। तो पोटेंशियल है वो सेम है, और ये सेम कब होगा? जब हाइट सेम होगा, है ना। हाइट सेम है तो इसका मतलब चार्जेस रेस्ट में है, इसका मतलब बिजली नहीं आ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा क्योंकि चार्जेस है वो सेम हाइट पर। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट है कैपेसिटर।
कैपेसिटर, रिमेंबर कैपेसिटर इज अ डिवाइस, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक्स आता है वो डिवाइस नहीं है बल्कि वो मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये तो डिवाइस है। अब इसका काम क्या होता है? चार्जेस को इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ चार्जेस इनसाइड अ कैपेसिटर। और इसे यूज कब किया जाता है? ये तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब हमें जरूरत पड़े। अच्छा, ज़रूरत भी अलग प्रकार का होता है, जैसे कि कभी इलेक्ट्रिसिटी चल जाता है तो हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। और किसी का ज़रूरत ये हो सकता है कि हमें इस ऑफिस में इतने सारे वर्क करने पड़ते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की एक नीड है, तब वो ज़रूरत पड़ जाता है, जो कि ज़रूरत बहुत अलग अलग प्रकार की है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्या स्टोर करता है? चार्जेस स्टोर करता है ना। तो ये हो गया बात चार्जेस जमा करने वाला रबर, ताकि मशीन को एक साथ उसे पावर दिया जा सके। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक, नाउ दिस इज लास्ट, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक बिजली रोकने वाला मटेरियल। वी नाउ it is related to insulator, and capacitor is related to conductor. If you put conductor among I would say among rod of capacitor, or you can say inside a circuit of electricity, you will see कि यार वो कंडक्टर है, वो क्या कर रहा है? वो रोकने के बजाय, हालांकि उसका काम नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रोके, वो किसका काम होता है? इंसुलेटर का काम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आप कंडक्टर को पुट करेंगे तो वो चार्जेस को मूव करने देगा, लेकिन उसकी जगह पर इंसुलेटर को पुट करेंगे तो वो चार्जेस को रोक देगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाता, यानी उसके आगे वो आगे नहीं जा सकता है ना, फ्रॉम bypassing that insulator material, that those charges can't go from that material, and material is the insulator. अच्छा, it has a dam, this is a dam। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने के काम आता है। Now see let's see next lecture, which is the third chapter। थर्ड चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। till now we understood electrostatic, now we are going to see कि जो चार्जेस है वो मूव करेंगे। हमने इस चैप्टर में देखा, इस लेक्चर में देखा कि चार्जेस तो वो रेस्ट में थे, लेकिन अब जो थर्ड चैप्टर है उसमें देखेंगे जो चार्जेस है वो मूव करें। अच्छा, जो पहला चैप्टर हम लोग देखा है, बस एक इन्फॉर्मेशन लिया कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फील्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है, ये सब की एक इन्फॉर्मेशन ली फर्स्ट चैप्टर में। फिर उसके बाद देखें कि जो चार्जेस, ठीक है, एक बार इन्फॉर्मेशन ले लिए चार्जेस की, फिर हम लोग देखते हैं कि चार्जेस वो रेस्ट में भी रह सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड फ्रॉम चार्जेस विच आर इन अ रेस्ट, जो कि हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। अब थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चार्जेस है वो मूव कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर चार्जेस है वो रेस्ट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन वही चार्जेस अगर मूव करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ये सब रीजन है। नाउ लेट्स सी चैप्टर नंबर थर्ड। जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में जब चार्ज चलता है तो उसे करंट कहते हैं। फ्रॉम वर्ड करंट वी अंडरस्टैंड कि चार्जेस आर मूविंग। इस चैप्टर को लॉन्ग टर्म याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का बहाव। जैसे देखते हैं कि जो पानी है वो नदी में एक बहाव या यू कैन से फ्लो प्रोड्यूस करता है। कौन? वाटर। तो यानी वो जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स ना। एक चैप्टर है फ्लूइड चैप्टर, उसमें हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक, मतलब कि वाटर है जो रेस्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। और वहीं उसका अपोजिट है कि कुछ वाटर्स होते हैं जैसे कि नदी में, रिवर में मौजूद होते हैं, वो मूव करते हैं, तो उसे हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। उसे हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। अच्छा,
ये कंप्लीट हो हाइड्रोडायनामिक्स। इस सेम सेम इलेक्ट्रिक करंट के साथ अगर वो चार्जेस रेस्ट में तो हम उसे इलेक्ट्रिक स्टडी बोलते हैं, अगर वही चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, हमें फ्रॉम वर्ड से समझ आ रहा है, वर्ड से समझ आ रहा है। जैसे ओके, रिवर वाला एग्जांपल देख चुके हैं, वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। अच्छा, प्रोटॉन्स बहते हैं या नहीं बहते, अभी इसे स्किप किया जाए, इग्नोर किया जाए, लेकिन ये पीपीटी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट चार्जेस, वो बह रहे हैं। तो बह रहे हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं, फॉलो ऑफ चार्जेस इज व्हाट करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड में वायर के किसी एक पॉइंट से कितने चार्जेस मूव हुए, और ये कैन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, कितने चार्ज गुजरा, वही करंट हमारा। करंट क्या है कि जो एक वायर है, एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितने चार्जेस गुजरे, यू कैन से कितने मूव हुए, दैट इज व्हाट करंट। क्लियर? सो फर्स्ट टॉपिक वाज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके ओके, रीजन, अगर इलेक्ट्रॉन्स तेज मूव कर रहा है इसका मतलब हमें करंट ज़्यादा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिल रहा है। वही देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज लो, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट लेस, बहुत ही कम मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। अगर कम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कम मिलेगा, अगर वही इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस ज़्यादा मूव करेंगे, एक सेकेंड में ज़्यादा चार्जेस मूव करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ मोर। ओके, ये रीज़न है बिहाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, जो चार्जेस मूव करते हैं एक सेकेंड में एट द पॉइंट ऑफ वायर। सो हमें ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा है या कम। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी नो व्हाट इज द वेलोसिटी, बट यहाँ पर ड्रिफ्ट वर्ड इज एडेड विद वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की ठोकर, यू कैन से रेजिस्टेंस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि हम लोग समझ आते हैं कि वेलोसिटी क्या है, लेकिन जब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रोड्यूस होता है। पर इसका रीज़न बहुत ही सिंपल। हम लोग अगर इसे सिंपल रीज़न के साथ देखें और वाई हाउ इस सब के साथ देखें तो हमें एक क्लैरिटी मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी। सो रियलिटी जो है, इलेक्ट्रॉन्स वायर में सीधे नहीं दौड़ते, क्योंकि वायर ही कुछ कर्व में होता है, कभी वो राउंड में होता है, कभी सर्कल में होता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि यार एट ऑल द टाइम्स जो वायर है वो सिर्फ सीधी रेखा में नहीं हो सकता, सिर्फ सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, रियलिटी तो यही है रियल लाइफ में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वायर में सीधे मूव नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वायर ही सीधे नहीं। अच्छा, वो अंदर के आटम्स से बार बार टकराते हैं। अगर वो जो वायर है वो कर्व है, राउंड है, तो क्या होता है कि जो आटम्स में है वो अपने आप में एक वो फोर्स देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं पुश फोर्स। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्या है, टक्कर खाने के बाद बैटरी की वजह से वो एक हल्की से स्पीड से आगे घिस सकते हैं, यानी आफ्टर पुशिंग द आटम्स जो बैटरी की वजह से वो एक हल्की सी स्पीड से आगे घिस सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं। इस एवरेज स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी जो फ्रॉम द इनिशियल टिल द फाइनल वी विल टेक एंड वी विल सी कि जो वहाँ पर जो एटम्स में पुशिंग फोर्स लगता गया, किसी कारण से लगता गया पुशिंग फोर्स, तो वो जो फ्रॉम द इनिशियल टिल द फाइनल जो पुशिंग फोर्स लगता गया और जो स्पीड बढ़ा है ना, जो बढ़ा है, तो उस एवरेज स्पीड लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड लेंगे, ना कि स्पीड ओनली लेंगे।
तो एवरेज एस्पेक्ट का मतलब ये होता है जो आप इनिशियल से स्टार्ट करते हैं फाइनल तक पहुँचते हैं, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं फाइनल तक पहुँचते हैं। इस इनिशियल एंड फाइनल के बीच में हम लोग देखते हैं कि जो आटम्स है वो एक दूसरे से पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं। रीजन इज कि जो वायर है और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज द रीजन बिहाइंड पुशिंग अमोंग एटम्स, दिस इज द रीजन ये है कि जो वायर है वो सीधे नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी सीधे लाइन में या एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते, यू कैन से एक सीधी डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। और इस यहीं पर हमें वेलोसिटी यू कैन से स्पीड मिलता है, लेकिन स्पीड हमें एवरेज लेके चलना होता है फ्रॉम द इनिशियल टिल द फाइनल। और इसी बीच में जो जर्नी होता है एटम्स का, हमें ये देखने को मिलता है कि फोर्सेस हैं वो लग रहे हैं एटम्स के बीच में। रीजन इज कि वायर इज नॉट स्ट्रेट, दैट्स व्हाई। सो इसमें जो स्पीड इंक्रीज हुआ, एवरेज स्पीड जो हम लोग देखें, जो बढ़ा थोड़ा थोड़ा एवरेज स्पीड, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। ऐसे एवरेज स्पीड को हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। ओके, रीजन फॉर मेमोरी फॉर द लॉन्ग टर्म, जैसे भीड़ वाले बाजार में आप लोगों से टकरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, यानी हल्का हल्का सा मूवमेंट मिलता है, हमें थोड़ा सा वो स्पीड मिलता है। स्पीड मिलता है बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड पर्सन, वो बैकवर्ड पर्सन ने फोर्स दिया तो हमें थोड़ा सा स्पीड मिल जाता है। लेकिन याद रहे वो बैकवर्ड पर्सन ने थोड़ा सा फोर्स दिया तो आपको थोड़ा सा फोर्स मिलेगा, थोड़ा सा स्पीड मिलेगा। इसी प्रकार आटम्स के साथ होता है, जो बैकवर्ड आटम्स है वो नेक्स्टवर्ड आटम्स को थोड़ा पुश करते हैं। अच्छा, ये उस आटम्स की मजबूरी नहीं होता है कि हम पुशिंग फोर्स लगा, ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट डायरेक्शन। वो एक वायर के पास स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट डायरेक्शन में प्रोवाइड स्ट्रेट डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे होते। ये इसके पीछे रीजन है कि वो आटम्स के बीच में जो है पुशिंग फोर्स लग रहे होते हैं। अच्छा, जो वो पुशिंग फोर्स लग रहे होते हैं, जो स्पीड थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है आटम्स के बीच, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके सब स्पीड्स को लेंगे ना, क्योंकि सब आटम्स के बीच में पुशिंग फोर्स लग रहा है। अच्छा, तो हम लोग कहीं एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं और फिर एक फाइनल पॉइंट लेते हैं। अब इस बीच में जो एवरेज स्पीड रहा है अमोंग आटम्स, वो हमें निकालना होता है, तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखते हैं। बट यहाँ पर रादर देन सेइंग एवरेज स्पीड वी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ohm's law. Ohm's law, you know this is a law but of ohm's law। ये ohm's law 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक के तौर पर आया है। ये लॉ बताता है कि रिमेंबर, जैसे हम लोग गैसेस लॉ पढ़े, कॉलम्स लॉ पढ़े, तो हमें एक लॉ मिलता है, रूल मिलता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, रूल मिल रहा है हमें। कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन कहने की जगह रूल कहता है। जब हम रूल कहते हैं तो कंडीशन ऑटोमेटिक आता है। तो गोल्डन रूल ये है कि ये लॉ बताता है कि करंट और वोल्टेज का रिश्ता क्या है, यानी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि या इनडायरेक्ट है। यानी अगर करंट बढ़ रहा है तो क्या वोल्टेज भी बढ़ेगा, या फिर करंट बढ़ रहा है या अगर करंट बढ़ रहा है इसका मतलब वोल्टेज भी डिक्रीज है। क्या कुछ इस तरह का देखने को मिलता है डेट्स से लॉजिक। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा यानी वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज दिया जाएगा उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। या हम लोग देखते हैं अगर वोल्टेज ज़्यादा है, हम लोग अपना रियल लाइफ में देखते हैं कि यार वोल्टेज ज़्यादा है, इसका मतलब करंट ज़्यादा आ रहा है। अगर करंट ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब फॉलो ऑफ द चार्जेस वो है वो ज़्यादा है, और यू कैन से स्पीड, ये स्पीड ऑफ द चार्जेस इज मोर, दैट्स व्हाई वी गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो फॉलोइंग यू कैन से फॉलो ऑफ द चार्जेस आर मोर। ओके, दिस वाज लॉजिक। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, if you increase voltage then you will see कि current is also increasing, and over here R is a resistance का वर्क होता है, वो क्या बोलते हैं, चार्जेस को रोकने के लिए ये रेजिस्टेंस ऐसा कुछ काम करता है। अच्छा, तो वो ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं, प्रेशर वोल्टेज एक ही है। अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो करंट बढ़ेगा, अगर करंट को कम कर दिया जाए तो वोल्टेज कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कुछ अलग वर्ड है, लेकिन इसका कनेक्शन है इस वोल्टेज एंड करंट के साथ। लेट्स से यहाँ पर आर है रेजिस्टेंस, एंड वी नो कि रेजिस्टेंस का वर्क होता है वो चार्जेस को रोके, इसका काम होता है रेजिस्टेंस का वर्क। अगर
अच्छा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसे हम लोग रुकावट कहते हैं, ये एक रुकावट पैदा करता है चार्जेस के बीच में। अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब वायर की वो खासियत है, यानी ये वायर की एक ऐसी खासियत है जो करंट को रोकने की कोशिश करेगा, और वही चीज़ को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इन वायर की वही खासियत को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर, हम लोग देखते हैं कि एक व्हीकल है जो कि कुछ स्पीड से जा रहा है, हमें एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग एक ब्रेकर का यूज करते हैं। उसी प्रकार रेजिस्टेंस का वर्क होता है कि मैं चार्जेस को मूव ना करने दूँ, लेकिन रियल लाइफ में देखने को मिलता है कि वो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो फोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। ओके, वेरी लेस। अच्छा, रेजिस्टेंस का भी होना जरूरी है, इसलिए होना जरूरी है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना पड़े वहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके उस इलेक्ट्रिसिटी को रोक दें, इसलिए कंपलसरी। और भी कंपलसरी हो सकते हैं, यू कैन सो, और भी रिक्वायरमेंट हो सकते हैं टू स्टॉप टू यूज़ रेजिस्टेंस, है ना। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा एक ब्रेकर का ऑफ व्हीकल, कि अगर जो जो व्हीकल ब्रेकर ऑफ द व्हीकल होता है, अगर उससे अप्लाई करें तो क्या होता है, वह स्पीड रुक जाता है। ऐसा ही क्या होगा रेजिस्टेंस के साथ होगा, अगर वो जो चार्जेस फॉलो कर रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दिया जाए तो कुछ ना तो कुछ रुकावट देखने को मिलेगा किसका, और यू कैन से स्पीड ऑफ द वोल्टेज, नो, स्पीड ऑफ द चार्जेस विल डिक्रीज ग्रेजुअली। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बिटवीन देम इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, लेट्स टॉक अबाउट। सो नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टिविटी। ओके, सो रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, रुकावट। नाउ रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी को डिनोट किया जाता है रो से। वी नाउ दिस इज आल्सो नोन एज अ डेंसिटी, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट नो। यहाँ पर जस्ट अंडरस्टैंड कि जो ये रो है, हम लोग इसे यूज कर रहे हैं फॉर द रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये मटेरियल की अपनी फितरत है। आई थिंक रो का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मासेस, मासेस अपॉन वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में कितने मासेस हैं, क्या वो पूरी तरह से अटैच्ड है या फिर वो फ्लेक्सिबल है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक और स्ट्रॉन्ग, इफ स्ट्रॉन्ग इसका मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर वही वीक है तो इसका मतलब हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है। फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट पूरा वीक है तो इसका मतलब हमारे पास लिक्विड है, और पूरा वीक है तो इसका मतलब हमारे पास गैसेस है। अच्छा, तो ये बात हुआ रेजिस्टिविटी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की अपनी फितरत है, कॉपर का रास्ता साफ है तो रेजिस्टेंस कम है। अगर हाँ, ये इसका जो कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टिविटी है इज विथ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टिविटी विल बी वेरी क्लियर तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो चार्जेस है वो अपना फॉलो कर रहे हैं, जो कि वो बिना रुकावट को फॉलो करते रहेंगे। रीजन इज दी रेजिस्टिविटी इज वेरी लेस। अच्छा, कॉपर का रास्ता साफ होता है, यहाँ पर हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर देखते हैं, वेरी क्लियर होता है, बहुत ही क्लियर होता है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। रबर का रास्ता बंद है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को ले रहे हैं। अगर इंसुलेटर को लेते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी जो कंडक्ट इंसुलेटर है वो तो एक मटेरियल है, लेकिन वो रेजिस्टिविटी मटेरियल। कैसा मटेरियल है, रेजिस्टिविटी मटेरियल। जब हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी मटेरियल है, इसका मतलब जब उसको प्रयोग किया जाएगा तो वो करंट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन वहीं जगह पर अगर हम लोग अगर कंडक्टर को लें, जो कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज द, आई वुड से इज द वेरी लेस, इज द वेरी लेस। जो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज वेरी लेस, इसी कारण, यही कारण है कि हमें चार्जेस फॉलो ऑफ द चार्जेस ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें कॉपर में, सिल्वर में, लोहा में, इस सब में क्या है कि जो फॉलो ऑफ द चार्जेस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर हम उस कंडक्टर को इंसुलेटर से रिप्लेस कर दे तो ये देखने को मिलेगा कि जो फॉलो ऑफ चार्जेस है आर वेरी लेस, यानी इतने लेस होते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, और रियल लाइफ में देखते भी हैं कि वो मूव नहीं कर रहे हैं। रीज़न इज मटेरियल इज इंसुलेटेड, और वहीं अगर कंडक्टर लेते हैं तो मटेरियल क्या, करंट विल फॉलो ऑटोमेटिकली। यानी समझने की बात यह है कि जो मटेरियल है वो किस प्रकार का ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, मटेरियल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इंसुलेटर लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि यार ठीक है, हम लोगों ने इंसुलेटर मटेरियल लिया तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कुछ और होगा।
हम लोग ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं फॉलो नहीं करें, नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो फॉलो होता है ना, स्पीड ऑफ फॉलो ऑफ चार्जेस इज वेरी वेरी लेस, इतने लेस होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, लेकिन हाँ बहुत कम होते हैं, उनकी स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि वो बिल्कुल मूव नहीं करते, इसलिए रजिस्टिविटी वर्ड आया, जहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, अच्छा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि उसमें कंडक्टर भी होगा, इंसुलेटर भी होगा, दोनों चीज़ होगा, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 50% क्या है, रजिस्टिविटी है, और 50% रजिस्टिविटी नहीं भी है, ऐसा इसलिए क्योंकि मटेरियल है वो कंडक्टर का भी बना हुआ है, इंसुलेटर का बना हुआ है, इस तरह के मटेरियल भी देखने मिलता है, अब जो कि हम लोग सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे। हालांकि अभी इतना समझना काफ़ी रहेगा कि रजिस्टिविटी क्या है। देखो, ये हमें एक क्वालिटी बताता है मटेरियल की, किसके कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वो रजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वो चार्जेस को मूव नहीं करने देगा, अगर वही रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज वेरी लेस तो वो चार्जेस को मूव करने देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रीजन, लंबी वायर में ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होंगे। आप अगर वो जो वायर है ना, वायर अगर लेंथ ऑफ द वायर इफ यू इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन, वो जो फॉलो ऑफ द चार्जेस है वो विल डिक्रीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप लेंथ ऑफ द, सिंपल हिंदी भाषा में समझे तो अगर हम लोग वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें यानी बढ़ा दें तो हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर वही उसको लेंथ कम कर दें तो रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, यानी इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर आप कंडक्टर ले रहे हैं तो, अगर आप इंसुलेटर ले रहे हैं तो भी, हाँ यहाँ पर क्या हो सकता है, अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकता है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी मोर कैन बी लेस, लेकिन रेजिस्टेंस होगा, रजिस्टिविटी होगा, रजिस्टिविटी होगा तो होगा। नेक्स्ट वी हैव सेल्स, EMF and internal resistance, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या मुझे लगता है कि ये सेल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेल्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब बैटरी से कोई करंट नहीं ले रहे हैं तब उसकी मैक्सिमम पावर इज नॉन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई करंट नहीं ले रहे तब उसका जो मैक्सिमम हमारे पास पावर होगा वो क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा। यानी हम लोग ये जानेंगे कि इस बैटरी में इतना मैक्सिमम पावर है इस बैटरी के पास जो कि हमें इतना करंट देगा, और उसी प्रकार हम लोग उस बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग जान जाते हैं कि जो मैक्सिमम पावर इनसाइड दिस बैटरी इज दिस मच, देन वी यूज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ओके। यानी फोर्सेस ऑफ द मासेस ये देखने को मिल जाता है हमें, EMF, यही इसे हम लोग EMF कहते हैं। Now next we have internal resistance, we can say internal what is added, which means हम लोग आंतरिक की बात करें ना कि बाहर की बात। एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है, इंटरनल मतलब अंदर। यानी जो रेजिस्टेंस है वो इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द कंडक्टर, यू कैन से इनसाइड द इंसुलेटर। अच्छा ओके, बैटरी के अंदर जो केमिकल है, यानी हम लोग देखते हैं वो जो बैटरी के अंदर केमिकल स्टोर होता है, फिर वहीं से हमें चार्जेस मिलते हैं, चार्जेस मिलता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। यानी वो जो बैटरी के अंदर केमिकल स्टोर है वो भी करंट को थोड़ा रोकता है, जो केमिकल्स होते हैं बैटरी को थोड़ा थोड़ा रोकता है, यानी थोड़ा थोड़ा सबका भूमिका होता है, वायर का भूमिका है तो वो क्या बोलता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर ये भी भूमिका है। अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो केमिकल होता है इनसाइड द बैटरी ये भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, वो भी करंट को थोड़ा रोकता है, इसलिए बैटरी गर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। अगर 1 सेकंड में थोड़ा सा इंक्रीज हो तो देखते हैं, 1 सेकंड में नहीं, 1 मिनट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस तो देखेंगे 2 मिनट में और थोड़ा इंक्रीज होगा 3 मिनट में। इसी तरह लॉन्ग टर्म थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि बैटरी इज हीटिंग, बैटरी गर्म हो रहा है ना, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, ओके, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। और वो रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है बैटरी में, तो रीज़न इज केमिकल है, उस बैटरी में मौजूद केमिकल है। आप जानते हैं कि बिना केमिकल के बैटरी बनना है इम्पॉसिबल है, तो इसलिए जो केमिकल होता है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है
और वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसा हमारा टाइम गुजरता रहता है तो वो जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और वो जब धीरे धीरे इंक्रीज होता है इसका मतलब हीट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें ये देखने को अंत में रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो बैटरी है वो गर्म हो रहा है। इसलिए रीजन आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल्स किरचॉफ्स रूल, जैसे हम लोग द जंक्शन गेट के नाम से द जंक्शन लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। रिमेंबर, इट इज अ रूल ऑफ दिस पर्सन इज नोन एज द जंक्शन लॉजिक। अच्छा, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जब वायर्स का जाल, कॉम्प्लेक्स सर्किट, हम लोग सर्किट देखते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग। उस सर्किट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहा है, उसी में क्या है, यू कैन से बैटरी मौजूद है, उसी में क्या है, बल्ब मौजूद होगा, है ना, इलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद होंगे। तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास सिंपल सर्किट नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है, वो सारे सर्किट है जो इंटरसेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सर्किट इज कॉम्प्लेक्स। तो ये दो रूल्स काम आते हैं। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स, अगर सर्किट रहेगा वेरी सिंपल तो हम लोग आसानी से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कन्फ्यूजन भी मिल सकता है ना, कन्फ्यूजन मिल सकता है। सो पहला रूल क्या है, पहला रूल है जो कि जंक्शन रूल और सेकेंड जो रूल है वो है लूप रूल। यहाँ से हम, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं किसके बारे में लेकर, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी को लेकर। अच्छा, जंक्शन रूल, अगर जो सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो हम एक जंक्शन रूल और लूप रूल के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, वो क्या कहते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट दैट मटेरियल विल ग्लो अप, दैट बल्ब विल ग्लो अप from this point. That is how we understand by observing junction rule, by using this rule. अच्छा, let's explore it in more details. जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, यानी जंक्शन रूल में क्या होता है कि जितना करंट इज गोइंग उतना विल कम बैकवर्ड। पानी के पाइप की तरह पानी गायब नहीं हो सकता। वहाँ पर देखते हैं कि अगर ठीक है उसमें कोई हाइट प्रोवाइड नहीं करें, ठीक है, जो पाइप है पानी का उसमें हम लोग हाइट प्रोवाइड नहीं करें। जब एक बार मोटर को बंद कर दिया जाता है तो उसमें देखते हैं कि पाइप में अभी भी वाटर है, ऐसा होता है। सेम ऐसा होता है जंक्शन रूल के साथ। कोई उसमें जितना करंट जाएगा उतना वापस आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव लूप रूल। अच्छा, जो rule of junction was nothing but this is nothing but whatever current is going will come down, backward again. लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड वर्ड को यूज करना उचित नहीं रहेगा। तो करंट जितना आएगा हम लोग वही जानते हैं कि उतना ही जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि करंट इतना आया और उससे ज़्यादा फिर जाएगा, नहीं, जितना है उतना ही करंट जाएगा, जो कि बहुत ही वेरी सिंपल है। कोई भी कहेगा ये ऑफकोर्स अगर हमें इतना अमाउंट का मिल रहा है करंट तो इतना ही अमाउंट जाएगा। अच्छा, लूप रूल को देखते हैं तब हमें कन्फ्यूजन क्लैरिटी देखने को मिलेगा। लूप रूल है एक पूरे चक्कर में टोटल एनर्जी का जो बदलाव है ज़ीरो होता है, जो कि क्या होता है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहाँ पर देखने को ये मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी ये देखने को मिलता है कि जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। सेम ओवर ही हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलता है, जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ये कहना चाह रहा है कि जो एक चक्कर में, एक पूरे चक्कर में जो कि कॉम्प्लेक्स है, उस चक्कर में जितना भी काइनेटिक और पोटेंशियल आएगा एट द एंड हमें ये मिलेगा, एज अ रिजल्ट मिलेगा कि जो बदलाव है वो जीरो आया, ऐसा मिलेगा। किस लूप रूल से मिलेगा।
अच्छा ये देखो, लूप रूल है वो हमें एनर्जी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो टोटल है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जो कि जीरो होगा, बदलाव जो है चेंजेस होगा जीरो होगा। लेकिन वही जंक्शन रूल है, वो कहना चाह रहा है आप जितना भी करंट ले रहे हो उतना ही जाएगा, ना ही कम जाएगा ना ही ज़्यादा जाएगा। ये जंक्शन रूल, जंक्शन रूल का कहना है जितना करंट हो उतना ही जाएगा। और लूप रूल का कहना है कि जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसमें जितना भी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एट द एंड हम जो चेंजेस देखेंगे वो जीरो होगा, चेंजेस विल बी जीरो। अब इसके इसके समरी टेबल्स को देखते हैं। फर्स्ट वी हैव अ करंट, फर्स्ट वी हैव अ करंट। वी नो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ अ चार्ज, यानी अगर वही स्टैटिक लेते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि चार्जेस आर नॉट मूविंग। तो यहाँ पर करंट मतलब है फॉलो ऑफ अ चार्ज। नेक्स्ट वी हैव अ वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब ये कैन से प्रेशर, प्रेशर इफ प्रेशर इज मोर इसका मतलब करंट विल बी मोर, स्पीड ऑफ द चार्जेस विल बी मोर, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ऑफ द वोल्टेज ज़्यादा है, दैट्स व्हाई करंट विल बी मोर, इलेक्ट्रिसिटी विल बी मोर, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा वोल्टेज ज़्यादा इसका मतलब क्या है, डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर वह डिफरेंस इक्वल रहेगा तो हमें वो जो स्पीड है वो बहुत ही नॉर्मल देखने को मिलेगा, कांस्टेंट, यू कैन से कांस्टेंट। और उसी स्पीड को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें डिफरेंस दिखाना होगा, हमें डिफरेंस लाने की जरूरत होगा, सो दैट वोल्टेज कैन इंक्रीज, वोल्टेज कैन इंक्रीज। अच्छा रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रुकावट। जिस प्रकार हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ते हैं, फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि वो बॉडी जो मूव कर रहा है उसे रोके, एक्शन रिएक्शन का एक फिनोमेना देखने को मिले। सेम इट हैपेंस विथ चार्जेस, ये रेजिस्टेंस एक फ्रिक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका काम होता है रुकावट। जो स्पीड ऑफ द जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये किसके द्वारा कम होता है, तो आंसर इज रेजिस्टेंस के द्वारा। अच्छा इसके बाद आता है रेजिस्टिविटी, इसके बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है किसी मटेरियल, उसी के अकॉर्डिंग वो स्पीड ऑफ द जो चार्जेस हैं वो विल डिक्रीज और इंक्रीज, ये हमें पता चलेगा रेजिस्टिविटी से। तो ये रेजिस्टिविटी यू कैन से इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ओवरऑल आपको ये पता चलेगा रेजिस्टिविटी से कि जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है कि कम। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी से यू कैन रिमेंबर दिस फॉर द लॉन्ग टर्म। ये समझने की कोशिश करना है कि जो वेलोसिटी है ये हमें एवरेज स्पीड देगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। यहाँ पर ड्रिफ्ट वर्ड इज एडेड, इसका मतलब समझना है कि जो अमोंग आटम्स हैं उनके बीच में एक पोषण फोर्स लगा है, जो कि एक छोटे छोटे स्पीड को, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो रहा है उनके बीच में, थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो वो जो फ्रॉम दी उस जर्नी में कितने वो स्पीड इंक्रीज हुए, ये हमें पता करना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट के रूप में, दैट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यू कैन से एवरेज स्पीड। उस जर्नी में कितने वो छोटे छोटे जो स्पीड, थोड़े थोड़े जो स्पीड बढ़े हैं वो कितने बड़े हैं ओवरऑल उस जर्नी में, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा नेक्स्ट वी हैव किरचॉफ्स लॉ, नाम ही अजीब है लेकिन ये एक पर्सन का नाम है, किरचॉफ लॉ। रिमेंबर फ्रॉम दिस वी गेट लॉ, यानी लॉ ऑफ दिस पर्सन वाज व्हाट, इट सेज ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन देगा। यहाँ से हमें जंक्शन रूल मिलता है, क्या मिलता है, जंक्शन रूल मिलता है, और यहीं से हमें लूप रूल मिलता है। ओवरऑल आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन देखने को मिलेगा। अच्छा ये जो जंक्शन रूल है इसका काम होता है कि ये आपको बता सके जितना करंट आ रहा है उतना ही डिवाइस में एंटर करेगा। अच्छा ये लूप का मतलब है, लूप का मतलब यहाँ पर असली खेल है एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन। When it comes to conservation, we sum up what kinetic energy and potential energy. जो kinetic energy है potential energy inside the circuit वो होगा कितना, at the end जो हमें changes देखने को मिलेगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो रहेगा, ये देखने को मिलेगा, है ना।
ये था लॉ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। दिस वाज द थर्ड चैप्टर। इसके बाद फोर्थ फिफ्थ ये सब अलग चैप्टर, अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल।